As we have discussed a study in our last class, that soap film consists of two layers, whereas water film contains only one layer. Now, in this class, we will discuss about the excess pressure inside the water drop. Excess pressure inside water drop. Inside water drop. Let us see here if this is a drop of water. Now you know if this is a surface. If I am exerting pressure here, then what will happen? This surface will bend like this. So if more pressure will be act on this surface, then this surface becomes concave. But this surface becomes concave. But if more pressure will be applied on this surface, then it will becomes like this. So wherever pressure will be more, that surface will becomes concave. Now from here you see, this is the concave surface and this is the convex surface. Inside is concave and outside is convex. So we can say that inside pressure is more and outside pressure is less. P inside is greater than P outside. Inside pressure is more and outside pressure is less. Definitely pressure will be there if this is a water drop and this water drop is just enclosing inside a membrane. See here, beta, if water drop is there, then how it is forming the taking the shape of a spherical ball? Sphere, why? Inside this water is enclosed here. Why not from here water is moving inside or from here? Why? What is shape is spherical? Just like a balloon. You think about a balloon. बेटा बैलून में जब हम पानी भरते हैं उसका शेप स्फेरिकल बनते जाता है मेम्ब्रेन अगर फट जाता है तो what happen the water get spread now the membrane is holding there is a stretch in the membrane and such type of stretch is known as the tension force that is created over the surface is called tension force. So we can see that because of the surface tension force, the surface is holding water molecules. You know, surface tension is that property of any fluid to minimize the surface area. But due to excess pressure, बेटा इनसाइड का प्रेशर ज्यादा होता है ये चाहता है कि अपना वॉल्यूम को बढ़ाए और सरफेस एरिया क्या चाहता है सरफेस टेंशन क्या चाहता है सरफेस टेंशन ऑलवेज टेंड्स टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया बेटा ये क्या होगा ड्यू टू अंदर के सरफेस टेंशन की वजह से ये बाहर की ओर फैलना चाहेगा और सरफेस टेंशन की वजह से अंदर की ओर कांटेक्ट होना चाहेगा जब आप एक माइक्रोस्कोपिक व्यू पर माइक्रोस्कोप की मदद से आप एक वाटर ड्रॉप को देखेंगे जो स्फेरिकल है बेटा वो इस तरह से होता हुआ दिखेगा इक्विलिब्रियम स्टेट में थोड़ा सा फैलेगा फिर कांटेक्ट होगा फैलेगा कांटेक्ट होगा ऐसे इक्विलिब्रियम में रहेगा यानी कि ड्यू टू एक्सेस प्रेशर इज वांट टू एक्सपेंड ड्यू टू एक्सेस प्रेशर द प्रेशर वांट्स टू इंक्रीज द वॉल्यूम so P delta V is force into displacement work done बेटा ये सिलेंडर है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर अंदर का प्रेशर पी आई है बाहर का पीओ और ये बड़ा है तो नेट प्रेशर क्या लगेगा पी आई माइनस पीओ ये बाहर की ओर पिस्टन को पुश करेंगे व्हाट इज द एरिया ए लेट द एरिया ऑफ द पिस्टन ए जिससे पिचकारी में लगी होती है बेटा ये गोल सा और उसको हम लोग पुश करते हैं तो वो पानी को क्या करता है आगे पुश करता है ये जब पुश करेगा इसे आगे और डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट गया तो एरिया अब देखिए इसे
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। अगर बेटा नीचे भी ए से डिवाइड किया और इधर ए से मल्टीप्लाई किया तो अल्टीमेटली कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया पर तो उसे प्रेशर कहते हैं। और क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि सिलेंडर का ये पोर्शन का वॉल्यूम, अगर अंदर के प्रेशर को लगने की वजह से ये पिस्टन एक दूरी आगे चला गया, ए इंटू डेल्टा एक्स क्या होता है बेटा, सिलेंडर का फॉर्मूला पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर क्या है ए एंड व्हाट इज एच एक्स, तो ये होगा वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा एक्स चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के अलावा प्रेशर इनटू डेल्टा भी होता है। क्या होता है बेटा, प्रेशर इनटू डेल्टा भी, change in volume, change in volume. Now what you see, during due to excess pressure, due to excess pressure you write here pi minus po, pi is the pressure inside pressure inside the sphere, pressure inside the sphere, pressure inside the sphere, and what is po, pressure outside the sphere. What is po, pressure outside the sphere. Now pi minus po, it means inside pressure is more, outside is low, so pi minus po is called excess pressure inside. एक्सेस का मतलब अगर अंदर में 20 पास्कल प्रेशर है और बाहर में 10 है तो 20 माइनस 10 पास्कल अंदर में जा रहा है, दैट इज एक्सेस प्रेशर। और इसी प्रेशर की वजह से वो एक्सपेंड करना चाहता है। सो इफ यू सी अ ड्रॉप ऑफ वाटर, but this is concave surface, inside one is concave, the region which is present inside will be concave because this is the surface, so this region facing here the pressure will be more and outside pressure will be less. Now due to the excess pressure, any spherical drop of water tends to increase its volume. क्या करना चाहता है बेटा, एक्सेस प्रेशर की वजह से कोई भी, जैसे बैलून के अंदर अगर हम लोग हवा भर रहे हैं, अंदर प्रेशर ज्यादा बन रहा है तो वो क्या करेगा, बड़ा होता है बैलून, हवा निकालिए छोटा होने लगे। तो ड्यू टू एक्सेस प्रेशर द बबल टेंड्स टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, एक्सेस प्रेशर, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर the bubble tends to increase its volume, the bubble tends to increase its volume, increase its volume, and due to surface tension, and due to surface tension, the surface area of the bubble, the surface area, because this is a surface tension is a surface property, and you know that because of the surface tension any surface of the fluid wants to minimize its surface area, but जितना भी surface area छोटा होगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, फ्लूइड के सरफेस की एनर्जी घटेगी। एंड यू नो एनी बॉडी wants to minimize its potential energy, बेटा नेचर में रूल है, सारी बॉडी अपने पोटेंशियल एनर्जी को घटाना चाहती है। जैसे एक बॉल को ऊपर से छोड़े, इंक्लाइन प्लेन है बेटा, बॉल सीधे नीचे आएगा जमीन की ओर, क्यों आएगा, बिकॉज जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। उसी तरह कोई भी एक सरफेस फिल्म है लिक्विड का, फ्लूइड का, वो चाहता है अपने सरफेस एरिया को घटाना, तो यहाँ दो फोर्सेस ऑपरेट हो रहे हैं, एक अंदर का प्रेशर इसके
वॉल्यूम को बढ़ाना चाह रहा है जिससे सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस टेंशन की वजह से इसका सरफेस एरिया घटना चाह रहा, और यही दोनों फोर्सेस बबल को इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, और इसके कारण बबल एक डेफिनेट शेप स्फेरिकल रेडियस में एग्जिस्ट करता है. So because of these two opposing forces, one because of the excess pressure and yes, here we are discussing about excess pressure inside the water drop. Which topic we are discussing? Excess pressure inside water drop. बेटा एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, जिससे आप बैलून लेंगे, बैलून के अंदर हवा भरी है, अंदर का प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो उससे बैलून बढ़ेगा, शेप में बढ़ेगा, और जैसे हम हवा निकाल देंगे अंदर का प्रेशर घटेगा, बॉलून का साइज घट जाएगा. उसी तरह वाटर के ड्रॉप को अगर देखेंगे तो इनसाइड प्रेशर विल बी मोर एंड आउटसाइड प्रेशर विल बी लेस. क्योंकि बेटा देखिए एक सरफेस है, मेम्ब्रेन, हम इधर से प्रेशर ज्यादा लगा रहे हैं तो ये सरफेस अंदर की ओर जाएगा और ये सरफेस कनकेव बनेगा. उसी तरह हवा जब फोर्स लगा रहे हैं तो ये सरफेस कनकेव हो गया. दिस शो दैट हियर प्रेशर इज मोर, हियर प्रेशर इज लेस. अब ये देखिए बेटा, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर द वॉल्यूम वांट्स टू इंक्रीज, तो सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा. कल ही बताया था मैंने इन लास्ट क्लास कि बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, जैसे ये बढ़ना है बढ़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, मेम्ब्रेन सिकुड़ना चाहेगा, तो ये अंदर की ओर भागना चाहेगा क्योंकि सरफेस एरिया को घटाना चाहेगा. एक्सेस प्रेशर फोर्स बढ़ाना चाहेगा और सरफेस टेंशन घटाना चाहेगा. ये जब माइक्रोस्कोपिक व्यू पर देखेंगे तो ये बबल ऐसा होता हुआ दिखेगा हमें, और इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन रहेगी. अगर अंदर का प्रेशर बढ़ गया तो बबल बर्स्ट कर जाएगा, सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा तो बबल की इंटीग्रिटी, बबल फूटेगा नहीं. तो दिस टू फोर्सेस, सरफेस टेंशन क्या करना चाहिए, and due to surface tension the surface area wants to minimize, and during equilibrium both perform equal amount of work, and during equilibrium both perform equal amount of work, but pressure work is positive and work due to surface tension is negative. But pressure forces, but work done due to pressure is excess pressure is positive, and due to surface tension is negative, and the total sum is zero, and the total sum is zero, and the total sum is zero. बेटा ये टोटल सम जीरो का मतलब अंदर का प्रेशर इसके वॉल्यूम को बढ़ाना चाह रहा है और सरफेस टेंशन इसके वॉल्यूम को घटाना चाह रहा है. तो ये बस सरफेस, ना तो एरिया बढ़ रहा है और ना ही एरिया घट रहा है. ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन किए हुए, ये स्टेबल है. तब जाकर के 100 बबल स्टेबिलिटी को अटेंड करता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेंड करता है. तब देखा जाए, लेट इनिशियल एरिया इज आर, लेट इनिशियल रेडियस क्या है बेटा, इनिशियल रेडियस
इनिशियल रेडियस है आर, आर, और हल्का सा एक्सटेंड करेगा, एंड फाइनल रेडियस ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम आर प्लस डेल्टा आर, यानी कि डेल्टा आर बहुत छोटा सा डेल्टा आर में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रेडियस कितना बढ़ता है, डेल्टा आर, यहां से यहां थोड़ा सा चेंज होता है। माइक्रोस्कोपिक व्यू पर देखेंगे बेटा, ये डेल्टा आर मिलीमीटर से भी कम हो सकता है या मिलीमीटर के बराबर हार्डली हो सकता है। माइक्रोस्कोपिक व्यू पर बबल ऐसे ऐसे होते रहते हैं, अंदर का प्रेशर बढ़ाना चाहता है उसके वॉल्यूम को, और सरफेस टेंशन उसके एरिया को घटाना चाहता है। नाउ क्लियर। अब देखेंगे तो यहां क्या लिखेंगे बेटा, वर्क डन बाई surface tension is negative plus work done by excess pressure Pi minus Po is positive and this sum is 0। बड़ा इसे जब उस साइड ले जाएंगे तो क्या लेंगे, या इसे उस साइड ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, दोनों का सम क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा नेगेटिव एंड नेगेटिव कैंसिल आउट। इट मींस वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय Px। बेटा वर्क सरफेस टेंशन में क्या होगा, वर्क डन कल पढ़ा था, वर्क डन इन इंक्रीजिंग यूनिट एरिया, दैट इज सरफेस टेंशन, ये पढ़ा था हमने, ये फॉर्मूला। व्हाट इज सरफेस टेंशन, वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज यूनिट एरिया। व्हाट इज सरफेस टेंशन, वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज यूनिट सरफेस एरिया। तो वर्क डन बाय सरफेस टेंशन क्या होगा बेटा, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। तो बेटा वर्क डन बाय सरफेस टेंशन P, इंक्रीज इन एरिया क्या हो गया बेटा, जब ये रेडियस डेल्टा आर चेंज हो गया तो नया सरफेस एरिया, चेंज इन एरिया, यहां चेंज इन सरफेस एरिया लिखेंगे बराबर वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर P डेल्टा भी, अभी बता P डेल्टा भी होता है, वर्क डन बाय प्रेशर P डेल्टा भी होता है, यानी कि वर्क डन बाय सरफेस P डेल्टा भी को लिख सकते हैं P इंटू P मीन्स P एक्सेस, Pi माइनस PO को P लिख सकते हैं, डेल्टा भी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, P फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, T इंटू बेटा जब इसका रेडियस डेल्टा आर बढ़ जा रहा है, ये स्फीयर है तो फाइनल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या हो जाता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कितना रेडियस बढ़ा, डेल्टा आर माइनस इनिशियल सरफेस एरिया 4 पाई आर इजिकल। बेटा इसे मैं रब कर दे रहा हूं, यहां जगह चाहिए हमें तो इसे यहां लिखते हैं। अब देखिए पी आई माइनस पी को पी एक्सेस लिखेंगे, फाइनल वॉल्यूम क्या लिखते हैं बेटा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अभी इसको यहां पर लिख रहा हूं, देखिए बेटा टी इंटू 4 पाई, बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए आर बी डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट हटाइए, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। फाइनल वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, और इनिशियल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इसे जब सॉल्व करेंगे
बेटा दोनों साइड में देखिए 4 पाई कॉमन है, यहाँ भी 4 पाई, यहाँ भी 4 पाई, सबको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे। पी आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर, बेटा ये निग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल क्यों होगा? क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होता है। 10⁻⁻6 मानिए कि चेंज इन रेडियस ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। 10⁻⁻6 का स्क्वायर 10⁻⁻12, यानी कि उसका 10 लाख टाइम्स छोटा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे नेग्लिजिबल मानेगा। डेल्टा आर का स्क्वायर या डेल्टा आर का क्यूब बहुत छोटा होता है, इसे कैंसिल आउट कर देंगे, नेग्लिजिबल। 2 r डेल्टा आर 4 पाई हमने दोनों साइड कैंसिल कर दिया था, आर स्क्वायर यहां ये कर देंगे, पी एक्सेस 1/3 कॉमन ले लिया। बेटा देखिए इसका क्यूब लिखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर ये माइक्रोस्कोपिक था 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 का क्यूब 10⁻⁻18, ये भी नेग्लिजिबल कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे अगले स्टेप में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, इसे नहीं नेग्लिजिबल क्योंकि इसकी स्क्वायरिंग या क्यूबिंग नहीं है, प्लस 3ab², और फिर यहाँ ये 10 लाख टाइम छोटा हो जाएगा, ये भी नेग्लिजिबल कर देंगे, माइनस 4 पाई तो कॉमन लिया तो 1/3 को हमने यहां ही कॉमन ले लिया, आर क्यूब। बेटा यहाँ से ए क्यूब कैंसिल, ये नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल, ये बचा, यानी कि आपका यहां से देखें t इंटू 2 पाई r इंटू डेल्टा आर, t इंटू 2 पाई r इंटू डेल्टा आर, t इंटू 2 r डेल्टा आर, 2r डेल्टा आर, ये क्या होगा बेटा? p एक्सेस बाई 3, ये कैंसिल, ये नेग्लिजिबल, ये बचा 3r² 3r² डेल्टा आर। बेटा देखिए क्या क्या कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, r² से r कैंसिल, r डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, तो p एक्सेस का फॉर्मूला क्या होगा? 3 से 3 कैंसिल, r² से r, एक r बचा जो इधर नीचे जाएगा, 2t अपॉन ये r चला गया, तो p एक्सेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2t अपॉन r, 2t upon r. This is very important formula, and these are basic for determining excess pressure inside soap bubble. Let us once again discuss. But we know that inside the soap film, okay beta, for soap bubble, you know there are two surfaces. There are two surfaces. In soap film, there are two surfaces. So that's why excess pressure due to surface tension, the surface area wants to minimize. The surface area wants to minimize. इसलिए क्या होता है बेटा? दोनों सरफेस की एरिया को चेंज करने में वर्क डन करना पड़ेगा सरफेस टेंशन को, तो इसलिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज अगर रेडियस डेल्टा आर चेंज होगा तो अंदर वाले का भी चेंज होगा, बाहर वाले के, तो इसलिए एरिया डबल से मल्टीप्लाई करना, बाकी सारी चीजें एज इट इज प्रीवियस केस था। यहाँ पे 2 यहाँ भी आ जाएगा, फिर यहाँ भी आ जाएगा, फिर यहाँ भी आ जाएगा सरफेस टेंशन का, तो फिर यहाँ और यहाँ भी सरफेस टेंशन के साथ आएगा। It means excess pressure inside the soap bubble will be 4t upon r. Will be 4t upon r. But hydrodynamics is that branch of physics which deals with the study of properties of fluid. Study of properties of fluid.
when they are in motion. Dynamics means motion. And this is the study of cause of force which are operating between the various layers. So see here, first one is, बेटा पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है विस्कोसिटी। जिस तरह से फ्रिक्शन फोर्स लगता है बेटा एक सरफेस और दूसरे, जैसे हमारे जूते और अर्थ सरफेस के बीच में, अगर रेत आ गया तो हमारा जूता भी स्लिप कर जाता है, वहां हम गिर जाते हैं। तो फ्रिक्शन घटता है तो मोशन क्या हो जाता है, और हमारे पैर वहां जम नहीं पाती है। उसी तरह देखेंगे फ्लूइड बहुत सारे होते हैं। पानी की बात की जाए तो बहुत तेजी से गिरता है, ऐसे आप गिराएंगे तो। दूसरी ओर अगर मस्टर्ड ऑयल को गिराएंगे तो थोड़ा धीरे गिरेगा, और वहीं पर अगर मोबाइल ऑयल यूज करेंगे जो ऑटोमोबाइल्स में डाला जाता है तो बहुत थोड़ा धीरे गिरेगा, तो धीरे गिरेगा। और अगर हनी को डालेंगे तो बहुत ही धीरे 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 गिरेगा। बोलेंगे इसमें विस्कोसिटी सबसे ज्यादा है, और यहां विस्कोसिटी सबसे कम है। जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी सबसे कम होती है वो तेजी में फ्लो करता है क्या ये? जब विस्कोसिटी है क्या, जो फ्लूइड के फ्लो को रोकता है। बेटा जब आप देखेंगे नदी में तो नीचे वाला पानी सबसे धीरे बहता है, क्योंकि वो जमीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो जमीन जो है सरफेस इसे सबसे ज्यादा रोकता है। अब आप इसके ऊपर वाले लेयर को देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा स्पीड में फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर वाला और ज्यादा स्पीड में फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर वाला और ज्यादा, इस तरह से स्पीड सरफेस की ओर ऊपर में सबसे ज्यादा होता है। What happened? One layer of fluid opposes the motion of another layer of fluid. बेटा जब फ्लूइड फ्लो हो रहे तो एक लेयर दूसरे लेयर के कांटेक्ट में आते हैं, इस पर रगड़ खाते हैं। They get friction over when the two layers of the fluid are flowing. One layer gets rubbed over the another. That's why the layer which is in the lower side, whose velocity is less, it opposes the upper layer in backward direction. That's why the velocity of the fluid is decreasing. So viscosity is that property of fluid. Viscosity is that property of fluid due to which one layer of fluid opposes the motion of another layer. Due to which one layer of fluid opposes the fluid means that can flow, water, oil, anything. One layer of fluid opposes the motion of another layer of fluid. Another layer of fluid. बेटा अगर दो लेयर की बात करें उनके बीच विस्कस फोर्स कितना लग रहा है, एक लेयर दूसरे लेयर को अगर अपोज कर रहा है उसके मोशन के लिए तो कितना लगेगा? इनके बीच की दूरी हो d, और इनके बीच वेलोसिटी का फासला हो, इनका v2 है और इसका v1 है। ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी और इनका सरफेस एरिया कांटेक्ट में a है। जितना ज्यादा होगा ना एरिया कांटेक्ट में उतना ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। ऐसा सॉलिड फ्रिक्शन में नहीं होता, फ्लूइड फ्रिक्शन में सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। बट इन केस ऑफ सॉलिड फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया। बेटा यहां पर हम बात करते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स क्या लगेगा।
द मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स, जो फोर्स अपोज कर रहा है इसके मोशन को, उसे बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस, मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स is directly proportional to the distance between the two layers. First, distance between the two layers of fluid, distance between the two layers of fluid. यानी कि दो लेयर के बीच दूरी जितना ज्यादा होगी फोर्स कम लगेगा. सेकेंड पॉइंट, एरिया ऑफ द फ्लूइड. बेटा ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बेटा ये इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द surface area of fluid in contact. Surface area of fluid in contact. And velocity difference. Velocity difference. And velocity gradient. And velocity gradient. Velocity gradient. ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? ये जो बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है विस्कस फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इन कांटेक्ट. दूसरा बता रहे फोर्स, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी डिफरेंस v2 माइनस v1. और भाई इनके बीच की दूरी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जैसा कि मैं पिछले स्टेटमेंट में लिख रहा था. अब इस दोनों को एक कर दिया हमने. वेलोसिटी डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इस क्वांटिटी को लिखते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट. इस क्वांटिटी को क्या लिखते हैं बेटा? वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि दो लेयर के बीच वेलोसिटी जितना ज्यादा होगी विस्कस फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, और दूरी दो लेयर के बीच में जितना ज्यादा होगी वो विस्कस फोर्स कम लगेंगे. एंड दिस टू टर्म्स आर नोन एज v2 minus v1 by d. d is the separation between the two layers. This is known as velocity gradient. So beta, combining equation 1 and 2, combining equation 1 and 2, combining equation 1 and 2, 1 and 2, magnitude of viscous force is equals to, here proportional sign is there, a v2 minus v1 by d. Putting proportionality constant here, you remove proportionality sign, we can write proportionality constant eta. Eta, what is we read as eta, and this is known as the coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity, what is eta? Viscosity. Coefficient of viscosity से लिखते हैं बेटा, eta को हटाएंगे और ये v2 minus v1 upon d. So how we can define eta, coefficient of viscosity? Eta is the viscous force operating between the two layers of fluid which is acting on 1 meter square area and having a velocity difference of 1 meter per second of two layers separated by a distance of 1 meter. So how we can define coefficient of viscosity? This is the magnitude of viscous force operating between two layers of the fluid whose surface area in contact are
1 meter square. However, surface area, the viscous force acting with two layers of the fluid, and this force is acting on 1 meter square area of the fluid. And what is the velocity difference? 1 meter per second. And these two layers are separated by a distance of 1 meter. Let us see here. Meter per meter cancel out. Newton per meter square. Newton second goes outside. Meter cancel out. Newton second per meter square. Coefficient of viscosity unit is Newton second per meter square. Newton second per meter square. Newton second per meter square is the unit of viscosity. Now its SI unit is poise. Its SI unit is poise. P-O-I-S-E. Now what are next topic that we will discuss is viscous dragging force.